Hi guys, welcome back to another video with PRATHAM Test Prep, and this is the time around that we are going to be expecting our personal interviews and written ability tests for the Symbiosis entrance test for 2022. So if you are gonna get selected in Symbiosis, so they're going to take a personal interview and the written ability test, which will be a 50 marker thing that you have to get through to get into Symbiosis and different law schools that they have under their category. That is Pune, Noida, Hyderabad, and Nagpur. So today we are here for a very, very interesting session. So I will request you all to please hit on the like, share, and subscribe button, and also make sure that you hit on that bell icon. And today we are going to tell you a lot about the interview, how it's going to be, what you need to do, what you need to keep in your mind while you are going for that interview, what all things you can take care of, right? So all of this will be covered, and what are the tips that you need to take care if you are going for the personal interview online or offline. We will talk about both the aspects here. Okay, now coming to the first part is that what is the basic for a personal interview. पहले इस बात को समझो और इस बात को बहुत ध्यान से आपको सुनना है. मैं एक एक पॉइंट के ऊपर बात करूंगा. So please make sure that you are listening to me very carefully. So the first is have confidence in yourself. ठीक है, यहाँ पे confidence एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है. ठीक है, जब आप एक इंटरव्यू के लिए जाते हो, कॉन्फिडेंस इज द की टू एनी ऑफ द इंटरव्यूज दैट यू आर गोइंग टू सिट ऑल अक्रॉस योर लाइफ. ओके, सो दैट इज द फर्स्ट थिंग. नाउ कॉन्फिडेंस कम होगा तो अंडर कॉन्फिडेंट दिखोगे तो भी इंटरव्यू अच्छा नहीं जाएगा. और अगर सीमा पार होगा आपका कॉन्फिडेंस, राइट, इट इज गोइंग आउटसाइड द रूफ, दैट इज कॉल्ड ओवर कॉन्फिडेंस. गाइस, ओवर कॉन्फिडेंस इज also not recommended for any of you going for this interview. ठीक है, so confidence होना चाहिए खुद के अंदर, that I am as a person is confident in my own self with my own identity. So you have to get confident about your own self. In your own self आप confident होंगे तो आपका इंटरव्यू जाना पक्का अच्छा ही होगा. ठीक है, अब next is identify your strength. Okay, please, इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप किस चीज के अंदर अच्छे हो, ये आपको पता होना चाहिए. अगर आपको ये नहीं पता आप किस चीज के अंदर अच्छे हो तो शायद आप इंटरव्यूअर तक भी उस बात को नहीं पहुंचा पाएंगे. तो ये सारी चीजों के बारे में आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा गाइस. ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि आज मैंने आपको बताया और आपको समझ में आ गया. यू हैव टू गिव इट अ थॉट, राइट. आपको थोड़ा बैठना पड़ेगा. टेल अस अबाउट योरसेल्फ, ये सब हम बात करेंगे अभी क्या क्या होता है उसमें. बट अपने बारे में जानना is the most difficult thing in the entire world, right? आप पूरे संसार को जज कर सकते हो, बट खुद को जब जज करने की बारी आएगी तो आप शायद कहीं फेल हो जाओ. ओके, नाउ एक्सप्लोर योर वीकनेसेस ऑल्सो. आप देखिए कि आपकी वीकनेस क्या है, कि आप कहाँ खराब काम करते हैं. आप जैसे कई लोग बोलेंगे भाई शॉर्ट टेम्पर्ड है हम, कोई बोलेगा भाई मेरे पास मैं बड़ा बहुत ज्यादा सोचता हूँ, राइट, आई गेट इनटू थॉट्स, आई प्रोक्रेस्टिनेट अ लॉट, right, things of that sort, right. I am a procrastinator, I am a person who get very anxious about things, right, very quickly. So ऐसी चीजें आपको समझनी है, बट ये चीजें आपको इंटरव्यू में नहीं बोलनी. you have to choose the right words and the right things that goes well with your professional seeking that you have in the university. ठीक है, इस बात को जरूर ध्यान में रखिएगा. नेक्स्ट है डोंट फेक. ठीक है, ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट चीज है. तो कई लोग मेरे से पूछते हैं सर क्या मैं एक कहानी बता के आ जाऊं जो चीज एग्जिस्ट नहीं करती मेरे बारे में, क्या वो चलेगा इंटरव्यू में, क्या मेरा उसमें सिलेक्शन होगा? सो नो, राइट, दैट इज अ बिग नो. इफ यू आर स्पीकिंग इन द इंटरव्यू, राइट, जो आपके सामने आपका इंटरव्यू ले रहा है वो 20, 30, 25, 50 कितने भी साल का एक्सपीरियंस के साथ हो सकता है आपके सामने बैठा हो, and you try to fake in front of that person, you will be caught within minutes, right, within seconds also. Like आपको मिनट में आप जैसी कहानी चालू करोगे उसको पता लग जाएगा, right. They know after seeing your CV that how things are that you need to take care of, right. So you don't need to fake in the interview. Be a real self.
पुट अहेड योर लाइफ स्टोरी, अपने बारे में बताओ, अपने रियल सेल्फ के बारे में बताओ। अगर आपने कुछ बचपन से ऐसा देखा है जिससे आप सीखे, आगे बढ़े, अपने ट्रू सेल्फ को पहचाना, अवेकनिंग मूवमेंट, राइट, वी कॉल देम अवेकनिंग मूवमेंट, जब आपको लगा कि हाँ जिंदगी का एक चार्टा पड़ा और आपको एक नई चीज समझ में आई। सो देयर आर अ लॉट ऑफ अवेकनिंग मूवमेंट्स इन एवरीवन लाइफ। और आप अपनी ट्रू रियल स्टोरी बताएं लोगों को, अपना ट्रू सेल्फ बताएं उनको, उससे उनको ज्यादा बेटर आपका कैंडिडेचर समझ आता है। ठीक है, इससे ये बात आपको समझ में आनी कि उनको आपका कैंडिडेचर समझ में तो आए कि आप इंसान क्यों हो, कैसे बने, यहाँ तक कैसे आए, राइट, व्हाट वाज योर जर्नी, दे नीड टू नो दैट जर्नी ऑल्सो। ठीक है, तो ये समझिए डेस्टिनेशन से इंपॉर्टेंट जर्नी है यहाँ पे, तो जर्नी के बारे में जरूर बताएं। नाउ अंडरस्टैंडिंग द राइट पर्सपेक्टिव अबाउट फ्यूचर। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें मैं आपको बता सकता हूं, बट मैं आपको एक ब्रीफ में एक चीज बताना चाहूंगा कि आपसे अगर कोई पूछ रहा है कि भाई आप लॉ करके क्या करना चाहते हो, ठीक है, तो आप अगर बोलोगे कि भाई आई वांट टू वर्क इनटू अ लॉ फर्म, आई वांट टू गो इनटू द बिग सिक्स लॉ फर्म्स, आई वांट टू बी अ लिटिगेंट, और आई वांट टू बी अ like a judiciary, I want to get into, I want to become a judge, I want to get into the army, anything you are talking about, okay, any future perspective or anything that you have planned for yourself, उसको उस प्रोफेशन के साथ आपको इंक्लाइनेशन भी होना चाहिए, राइट, यू नीड टू नो, यू नीड टू प्रोवाइड अ राइट पर्सपेक्टिव अबाउट योर फ्यूचर। आप अपने फ्यूचर में करने क्या वाले हो, आपको इस बारे में जरूर बात करनी होगी। ठीक है, आई होप आप यहां तक आप सबको समझ में आएगा कि आपको करना क्या है। नेक्स्ट इज getting your goals right. Okay, if they ask you what are your goals looking like and what you want to do, where do you see yourself in next 5 years, what do you want to do as soon as you graduate, what will be your strategy in the college, ये सब कुछ थोड़ा सा समझ के जाइएगा जब आप इंटरव्यू में जाएं, बिकॉज ये आंसर आप ऑन द स्पॉट नहीं सोच सकते। दीज आर ऑल द थिंग्स दैट यू हैव टू गिव इट अ थॉट ऑन। तो ये सब चीजों के बारे में जरूर समझे, बैठे, सोचे थोड़ा, मतलब इसको क्या कहते हैं, हिंदी में एक शब्द होता है उसको कहते हैं मंथन। ठीक है, मंथन का मतलब होता है आप बैठ के सोचते हो, डिस्कस करते हो और खुद को एक्सप्लोर करते हो। यू कैन इवन आस्क योर पेरेंट्स दैट व्हाट डू दे सी इन यू, दैट लाइक इज योर वीकनेस और एनीथिंग, राइट, यू कैन आस्क देम ऑल्सो। आप अपने सेल्फ को एक्सप्लोर करते हुए यू कैन हैव अ कॉन्वर्सेशन विद देम ऑल्सो रिगार्डिंग दिस। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, कि सिम्बायोसिस एक पर्सनल इंटरव्यू ले क्यों रहा है दोस्तों। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसके बारे में अगर आपको नहीं पता तो आप शायद इंटरव्यू प्रोसेस को समझने में फेल हो गए। ठीक है, तो सिम्बायोसिस इंटरव्यू ले क्यों रहा है? फर्स्ट रीजन, टू नो योर पर्सनैलिटी आउटसाइड द स्लैट एग्जामिनेशन। ठीक है, जो स्लैट एग्जाम टेस्ट नहीं कर पाया, they want to test that, right? The main perspective that they have is to test what SLAT brings. That is your personality. They are grabbing your personality. They want to know what kind of a person we are taking into our institution. Does he incline with the kind of goals the person in the institution should have? Okay, so they are trying to understand just more deeper than your aptitude. Okay, so you have to be ready that a person might deep down, they might dive down into your career, they might dive down into your professional, your schooling, your personal life. They can ask you a little bit from here and there. So you need to be a person who's flexible to take questions, a person who's who is self-sufficient to talk. ठीक है, आपको एक कॉन्वर्सेशन करनी है इंटरव्यूअर से। आप अगर इससे भटक के आपने सोचा कि ये मेरा इंटरव्यू है, ठीक है, कि अगर आपने उसको इंटरव्यू की भावना से ले लिया और आप रैपिड फायर खेलने लगे, सो दैट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम फॉर यू, राइट सर, मैम, इट विल कम, मिस्टर और मिसेस, मिस्टर और मिस आनंद, आई वुड से दैट इट विल कम whenever it will be declared on the SLAT website. You can check on that, right? I don't know the tentative dates for them yet. Okay, now if you see, the third part is that आपका inclination एक सही तरीके से भी दिखाना है, right? Choosing the right word is what is important. ठीक है, वहां पे इंटरव्यूअर पैनलिस्ट को कोई नहीं कह रहा है कि आप जाके यू डू द बटरिंग टू हिम, यू डू मक्खन लगाने वाली बातें नहीं करनी है आपको।
आपको अपना रियल सेल्फ दिखाना, बट इंक्लाइनेशन भी तो दिखाना पड़ेगा। ये बात को आपको समझना है। Then you have to understand that you have to put the real expectation of yourself in front of the institution also. ठीक है, तो आपका इंक्लाइनेशन दिखेगा, तो उससे वो क्या चेक कर रहे हैं, वो आपकी पर्सनालिटी चेक कर रहे हैं आपके इंटरव्यू में, आपका पेशेंस चेक कर रहे हैं, एंड दे आर ऑल्सो चेकिंग योर प्रेजेंस ऑफ माइंड. So they are checking all of these things, right? So it's very, very important for you to be very present while you are going for the interview. आप अगर जगे हुए नहीं हैं तो आप इंटरव्यू में नहीं अच्छा कर पाएंगे. So you have to remember, you have to be awakened, you have to have that quick sense of understanding things. ठीक है, इंटरव्यूअर आपको बहुत चीजों में टेस्ट करेगा, आपका पेशेंस भी टेस्ट कर सकता है. हो सकता है वो आपसे 10-12 क्वेश्चन ऐसे पूछे जो आपको शायद नहीं आते हो, बट यू हैंडल देम ब्यूटिफुली, राइट? दैट इज ऑल्सो अ स्किल ना, वो भी एक स्किल है आपका जो बाहर आएगा. तो आपको ये समझना है कि जितना लंबा इंटरव्यू चलेगा, द मोर द मेरियर, ओके, द बेटर, ओके, द लॉन्गर इट इज द बेटर. ठीक है, कुछ ही सेंसेस में इंटरव्यू कम टाइम में खत्म होता है. या तो इंटरव्यू पैनलिस्ट को समझ आ चुका है कि द पर्सन हु इज कमिंग फॉर द इंटरव्यू, ठीक है, ये उनको पैनलिस्ट को कैसे समझ में आएगा कि जो बंदा इंटरव्यू देने आ रहा है ये लायक भी है कि नहीं, राइट? सो देयर आर अ लॉट ऑफ फैक्टर्स दैट दे विल चेक यू ऑन, राइट? So patience बहुत important है. They can ask you a lot of things on your patience. They can test you on your personal skills. They can test you on how well presented you are and how inclined you are towards doing that same thing. ठीक है जी. अब चलिए, इंटरव्यू के दो साइड्स हो सकते हैं. ठीक है, there is 2 expectations that I have with the interview. It can be online, it can be offline. There can be both the things. They can call you to the campus and they say that give us our interview on the campuses. Choose your campus, come give the interview, right? Or they might give you an option. ठीक है, कि ऑनलाइन लेना है ऑफलाइन लेना आपकी इच्छा है. ठीक है, नाउ देयर आर अ लॉट ऑफ फैक्टर्स दैट वर्क्स इन बोथ द थिंग्स. ठीक है, तो आपको क्या क्या करना चाहिए जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हो? तो पहली चीज, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू हैव अ इंटरनेट कनेक्शन अबव 30 Mbps अपलोडिंग स्पीड. ठीक है, उससे ऊपर का 40, 50, 100 जितना हो बेस्ट. ठीक है, दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू मेक श्योर. चेक योर बैकग्राउंड. ठीक है, ऐसे नहीं कि आप कोई ऐसे फैंसी से रूम में बैठ गए हो ना, पीछे ऐसे डोरेमोन है या कोई कार्टून कैरेक्टर लगा हुआ है या कोई भी फैंसी स्टफ, राइट? नथिंग. इट शुड बी अ प्लेन बैकग्राउंड, राइट? इट कैन बी अ ब्लू कलर्ड वॉल, डजंट मैटर. एक प्लेन बैकग्राउंड होना चाहिए. वहां पे आपको इतना दिमाग में रखना है. ठीक है, नाउ फॉर्मल ड्रेस कोड, ऑब्वियसली आप शर्ट ही पहन के जाएंगे. ठीक है, अगर आप लड़के तो आप कुर्ता और वॉट एवर इज अ फॉर्मल अटायर फॉर यू, जो आपको लगता है फॉर्मल अटायर में फॉल करता है, आपको वही पहन के जाना है अपने इंटरव्यू में. डू मेक श्योर दैट यू टेक केयर ऑफ दैट. You tie your hair very properly. If they're colored, whatever, you need not flaunt it in the interview. You can tie it up. And all the boys, if you have beard and anything, you need to be well groomed. ठीक है, तो अगर आप जा रहे हो तो वेल ग्रूम्ड और फॉर्मल ड्रेस कोड आपका इंटरव्यू में भी होना चाहिए. दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. दैट शोज कि आपने एफर्ट डाला है. यहाँ पे आने के लिए, बैठने के लिए भी कैमरा पे अगर आपने एफर्ट डाला है, वो एफर्ट दिखता है दोस्तों. तो इस बात को भूलना मत, वो एफर्ट दिखता है. तो फॉर्मली ड्रेस होना इस फाइन. कई लोग पूछते सर ब्लेजर पहन लो, तुम्हारी इच्छा है पहनना है पहन लो. Nobody is saying no. They said dress formally. Blazer is extremely formal. Go for it. If you want to, you can do it. Now silent surroundings. आप घर में इंटरव्यू देते हो, मम्मी आ सकती है, पापा आ सकते हैं, भाई बहन आ सकते हैं, डॉग आ सकते हैं, पेट्स, राइट? पेट्स इज अ वेरी वेरी बिग थिंग. आई हैव सीन दिस. बड़ी बड़ी मीटिंग्स में पेट्स आ जाते हैं लोगों के. आई हैव सीन द PM of न्यूजीलैंड had her daughter calling out for her in the interview, and she said that she's coming to go and help her. So pets, children, kids, anywhere. ठीक है, तो साइलेंट सराउंडिंग चूज करना बड़ा इंपॉर्टेंट है. तो प्लीज ध्यान रखिएगा कि आपका डॉग वगैरह आपके आसपास ना हो जब आप इंटरव्यू दे रहे हैं. उसको कहीं छत पे छोड़ दीजिएगा. वॉट एवर, राइट? फाइंड अ वे आउट, और गो टू अनदर हाउस, or go to a place where you can find a cabin for your own self where you can give an interview. Whatever. Keep documents ready in organized chronologically
offline and online both, soft copy, hard copy both. Please make sure that you have that. That is something which is very very important. Now check audio and video. भाई ये भी बहुत एक important factor है. अगर आपका वीडियो लैग होते हैं, आपका वीडियो क्लियर नहीं है और आपका ऑडियो क्लियर नहीं है, तो देयर माइट बी अ चांस दैट द इंटरव्यू माइट गेट इरिटेटेड. ठीक है, तो आप अपना एक दिन पहले ऑडियो और वीडियो टेस्ट करें. मेक श्योर दैट योर माइक्स वर्क, योर ईयरफोन्स वर्क, व्हाटएवर यू आर यूजिंग वर्क्स परफेक्टली, राइट. तो ये एक बहुत जरूरी चीज. नाउ हैव अ पेन एंड पेपर रेडी. अगर आपको कोई केस स्टडी देता है या वो ऐसा कुछ बोल रहा है जिसमें आपको कुछ नोट डाउन करने की जरूरत है, इंटरव्यूअर पैनलिस्ट कैन से थिंग्स दैट यू माइट हैव टू नोट इट डाउन. So you can't go and find a pen, or you can't type on your laptop, or you can't type on your phone. You need a pen and paper to write it out, because you can write without seeing it. समझ रहे हो दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी चीज है. आप फोन पे टाइप कर सकते हो बिना देखे, बट उसमें बहुत सारे एरर्स हो सकते हैं. बट आप लिख बिना देखे आराम से सकते हो. यू डोंट नीड एनीथिंग, यू डोंट नीड एनी विजन, मोस्ट ऑफ इट टू राइट, राइट. आप सीधी लाइन में अगर 4-5 चीजें लिखने हो, पॉइंटर्स, आप आराम से बिना देखे लिख सकते हो. तो दैट इज अ पॉजिटिव ऑफ हैविंग अ नोटपैड एंड पेन इन फ्रंट ऑफ यू. ठीक है जी, तो ये जरूर आप करें अगर आप ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए बैठ रहे. तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बट देयर आर स्टिल a lot of things left to talk, so please don't leave even if you're going for an online interview. Now offline interview वाले दोस्तों, प्लीज फॉर्मल ड्रेस होके जाना. अगर आप लॉ इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो मैं तो बोलूंगा प्लीज वेयर अ ब्लेजर एंड गो. सिंपल एज दैट. डोंट like it would be, people might say it's too hot, we are stretching it. Stretch it, go for it. It's just a half an hour deal, you can handle it. Next is be well groomed. Then you have silent surroundings when you are in there. Keep your documents ready. Ask for permission before entering the room. तो please, बहुत बड़ा हो सकता है कि हॉल में बिठाएं. My interview in Symbiosis was in their library. ठीक है, तो एक लाइब्रेरी के कोने में उन्होंने 2 बुक शेल्फ के बीच में एक टेबल चेयर लगा रखी थी. 2 टेबल चेयर, वहां पे पैनलिस्ट बैठा था और इसी साइड में मैं बैठा था. इट वाज लाइक अ डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट. आई वाज टॉकिंग टू 2 पैनलिस्ट. सो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट, इट कैन बी एनीवेयर. आपका कोई और रूम हो जिसमें बड़ा सेटिंग होगा, तो हो सकता है आपको थोड़ा तेज भी बोलना पड़े, राइट. सो यू नीड टू आस्क फॉर परमिशन सो दैट आपको भी पता लग जाए कि कितना तेज बोलने पे सुन लेते हैं. ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो टेस्टिंग द वाटर्स. सो आस्क फॉर परमिशन बिफोर एंटरिंग द रूम. कैरी योर फाइल. ठीक है, आप फाइल में लेके जाए प्रॉपर, ऐसे सिर्फ सर्टिफिकेट हाथ में ना लेके जाए, फोल्डर में ना लेके जाए, प्रॉपर फाइल के अंदर लेके जाए. इफ यू वांट टू कैरी देम, देन यू नीड टू कैरी दैट इन अ फाइल, right. Carry a pen and a paper. That is very very important. A A4 plain sheet or a pen of paper, you need to carry that also. Very very important. Now reach at least 45 to 50 minutes before the interview starts. ठीक है, तो ताकि आपके पास एक cooling off period हो. ठीक है, एक थोड़ा to take it in, right. It takes time to take it in. तो वो take it in होने के लिए थोड़ा 40-50 मिनट होंगे. आप माहौल से आप थोड़ा सा रूबरू हो जाएंगे जब तक. so that will help you to sense what is the aura of the room, right. That is very important. तो वो digest करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, तो 40-50 मिनट खुद को भी दे, राइट. so उससे पहले आ जाएं आप सेंटर पे. अगर आपका इंटरव्यू ऑफलाइन है तो डू मेक श्योर दैट यू डू दैट. नाउ अब भाई कॉमन क्वेश्चन और इनके आंसर कैसे होने चाहिए, हम अब उनके बारे में बात करेंगे. मैं एक एक क्वेश्चन को उठाऊंगा और उसके ऊपर आपको थोड़े से आंसर का तरीका बताऊंगा. आई विल नॉट गिव यू एन आंसर, बिकॉज जो लोग फिर यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं वो सारे वही आंसर बोल के आ जाएंगे, तो देयर विल बी अ प्रॉब्लम फॉर ऑल ऑफ यू, राइट. सो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट कम्स अप इज इंट्रोडक्शन. मैंने जैसा अभी आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि इंट्रोडक्शन, खुद को जानना सबसे मुश्किल चीज होती है, राइट. टू अंडरस्टैंड योर ओन सेल्फ, इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इन द एंटायर वर्ल्ड, right. So it should be a 45 to 50 second introduction, short and crisp, from which a person understands कि आप अपने बारे में क्या बताना चाहते हो और आप क्या पर्सनालिटी लेके आए हो उस इंटरव्यू के अंदर. ओके, उसके अंदर आपका पूरा नाम जरूर होना चाहिए. अगर उन्होंने आपको पूरे नाम से बुलाया है आपका देख के, तो आप अपना फर्स्ट नेम बोल के भी आगे बढ़ सकते हैं, as you know, or you can speak your entire name. And you can also say that you can call me by whatever, right. You can call me by Anand. This my name is Anand. You can call me by Sanjeev, right. So good morning, sir. Thank you for giving me a chance. And also my name is Sanjeev Bhatia.
and for the course of this interview you can call me Sanjeev, right? So अगर किसी को आदत नहीं है भाई, कोई हो सकता है जो मिस्टर शर्मा सुनने की आदत नहीं हो किसी स्टूडेंट को, हो सकता है आपको नहीं हो मिस मिश्रा बुलाने का, कोई आपको मिस मिश्रा बुला रहा है, आपने नहीं सुना कभी मिस मिश्रा आपको कोई बुला रहा है, एंड यू विल बी more hesitant in the interview, so you can directly tell them what they can call you during the course of the interview. Perfect. Next is strengths and weaknesses. हमने इसके बारे में बात करी, खुद की थोड़ी strengths भी जाने, खुद की weakness भी जाने. That is very very important. So knowing your strength and knowing your weakness is very important. So वो strengths और weaknesses भी ऐसी नहीं होनी चाहिए. It should not be like कि आप स्ट्रेंथ बता रहे हो कि मैं दिन भर पढ़ सकता हूँ, या आई कैन मेक अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, और आई व्हाट आई डू एज हॉबी. ठीक है, हॉबीज बताने लगते हैं लोग कि मैं हॉबी में नेटफ्लिक्स देखता हूँ और मैं ये सब कर सकता हूँ. आई प्ले वीडियो गेम्स, आई प्ले फीफा एवरी डे, आई एम अ चैंपियन इन माय स्कूल और वॉट एवर, राइट. ये सब नहीं बताना है आपको. ठीक है, स्ट्रेंथ और वीकनेस में आप अपने सेल्फ की स्ट्रेंथ और वीकनेस बताओगे. दैट आई एम अ परसिवियरेंट पर्सन, आई एम वेरी हार्ड वर्किंग, राइट. दीज आर माय स्ट्रेंथ. If I get something in my assignment, I'll never leave it until I'm able to solve it. I'll find every way to solve it. So I'm a problem solver. So that is one of my strengths. I have a knack for things. I can understand. I'm a very observant person. So this is one of my strengths. तो ऐसी चीजों के बारे में आपको बात करनी है. ठीक है, वीकनेस हो सकती है आपकी, आप ऐसे वीकनेस नहीं बता सकते कि सर मैं प्रोक्रेस्टिनेटर हूँ और ये सब मैं बहुत सोचता हूँ, ऐसी आप ऐसी चीजें नहीं बोल सकते. आपको थोड़ी मतलब क्वालिटी अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर वीकनेस, अंडरस्टैंड योरसेल्फ एंड फाइंड अ स्वीट स्पॉट. ठीक है, विच इज नॉट लाइक इट्स नॉट गोइंग टुवर्ड्स द नेगेटिव साइड ऑल्सो. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज व्हाई लॉ. आप लॉ क्यों करना चाहते हो, इसका आंसर आपको जरूर से पता होना चाहिए. ये तो सेल्फ एनालिसिस भी, अगर आप लॉ के इंटरव्यू में जा रहे हो तो लॉ क्यों करना चाहते हो इसके बारे में जरूर जाने, खुद को अंडरस्टैंड करें. दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ व्हाई सिम्बायोसिस. ओके, व्हाई सिम्बायोसिस, क्यों जाना चाहते हो कॉलेज में, ऐसा क्या है उस यूनिवर्सिटी में कि आपको वहां ज्वाइन करना है, आपको क्या मिलेगा उस यूनिवर्सिटी के अंदर, व्हाट आर द एकेडमिक बेनिफिट्स, मतलब प्रोफेशनल बेनिफिट्स, पर्सनल बेनिफिट्स, व्हाटएवर you can talk about. Okay, so sometimes they have also asked what is the meaning of symbiosis, right? तो आप जरूर याद करके जाए what is the meaning of symbiosis. It comes from a word called symbiotic relationship, which means growing of each other, right? So ऐसी चीजें आपसे इंटरव्यू में जरूर पूछी जा सकती हैं. So do make sure that you are preparing in that manner. Now, what after the course? What are you going to do after you complete your law degree? क्या करने वाले हैं उसके बारे में भी जरूर सोचें. थोड़ा सा अगर आपको नहीं पता तो आइडिया लें, समझे कि क्या प्रोफेशन के अंदर होता है और आप किस तरफ इंक्लाइन हो सकते हैं. जस्ट हैव एन आइडिया. आपको कोई ऐसे पत्थर की लकीर नहीं है कि जो वो बोला है वही करना है. तो आप अपना एक्सप्लोरेटरी एटीट्यूड भी दिखा सकते हैं कि आप सोच रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं. जैसा होगा कोर्स के अंदर भी एक्सप्लोर करेंगे. आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है. अगर आप दिल्ली से तो आप पुणे क्यों जाना चाहते हैं, अगर आप पुणे से तो आप नोएडा क्यों जाना चाहते हैं, या फिर अगर आप सॉरी गाइस, अगर आप हैदराबाद से हैं और आप पुणे जा रहे हैं तो आप पुणे क्यों जा रहे हैं, अगर आप नागपुर जा रहे हैं तो आप क्यों जा रहे हैं. तो आपको इन सब के बारे में जरूर से पता होना चाहिए. राइट नाउ, academic and other achievements. You should know about your academic achievements also. Do make sure that you know about your academic achievements, that what you have done in your school, what you have done in your co-curricular activities, what you have done in your time while you were studying, what you were able to achieve, what you got as a certificate. 6th 5th स्टैंडर्ड की बातें मत करना प्लीज, थोड़ा रिसेंट टाइम्स की बात करना. 10th 11th 12th टाइप्स में आप अपने रिसेंट डेवलपमेंट्स, जब अडल्टहुड थोड़ा 14 15 16 17 वाला बात चलनी चाहिए. ठीक है, तो दैट इज व्हाट इज समथिंग दैट यू नीड टू मेक श्योर दैट यू आर टॉकिंग अबाउट. फैमिली बैकग्राउंड, राइट. यहाँ पे कई बच्चे या कई स्टूडेंट्स बहुत स्ट्रेच कर जाते हैं, राइट. they obviously everybody is proud of their family. Okay, that is the emotional aspect that is being questioned in the interview sometimes. ठीक है, तो अगर आप अपनी फैमिली से बहुत प्राउड है, हम सब हैं, right? Everybody is proud of their family, but family background should be very short and crisp, right? It should go straight from your mom, dad, or siblings, or whatever. If you want to just get into your grandfather, that should be the maximum, right? उससे आगे आप अपने पूरे परिवार के बारे में ना बताएं that there are 5 brothers, 4 sisters, ये करता है, वो करता है. No,
Very short and crisp, just about your dad, mom, and your siblings if they're there. That's it. Okay. Now, some questions can be asked from the knowledge and awareness also. वो आपसे थोड़ी जीके वगैरह भी पूछ सकते हैं, ठीक है, थोड़ा awareness के बारे में भी questions पूछे जा सकते हैं. So do make sure that आप थोड़ा सा न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ के जाएं before you are going for the interview, at least 10-15 days का, right? Today, like also the day where you going to give the interview also, आपको make sure करना है कि आप अपना वहां पे न्यूज़पेपर वगैरह, every GK news that is there in that month, you are at least reading that and going. Okay. Now coming to the next part is that what should you exactly do in an interview? आपको करना क्या है? अब वहां जाके करोगे क्या? बैठ के बात ही तो करनी है, ठीक है, बट उसका एक तरीका है. You have to choose your words wisely. That is the first tip of the day, is that use your words wisely. अगर आप अपने words wisely use नहीं करोगे, interviewer आपको बाहर निकाल सकता है या आपका इंटरव्यू शॉर्टन हो सकता है. सो चूज योर वर्ड्स वेरी वेरी वाइजली. सेकंड, बी कॉन्फिडेंट, ठीक है, खुद के अंदर, खुद की जो पर्सनालिटी है उसके अंदर, वॉट एवर, बी कॉन्फिडेंट इन योर स्किन, बी अ कॉन्फिडेंट पर्सन, बी अ कॉन्फिडेंट ह्यूमन. वॉट एवर यू वॉन्ट टू feel good and go in the interview. Okay, that is the second thing. Third thing, stay positive. Positivity is a very big role in an interview. Don't think that the interview panelist is trying to grill you or do anything personal with you. They don't know you at all. They are not judging you. They are only judging you by your CV or what kind of a person you are. So don't get negative in the interview. Never ever fight with an interviewer panelist. Make a note of that. You can be very, 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 very honest and like a person who like to say things on the face, but please never disrespect an interviewer panelist. Do make sure that अगर आप सोचिए खुदा ना खास्ता आपका इंटरव्यू कहीं अच्छा नहीं होता, आपका एडमिशन नहीं होता और अगली साल आप फिर से ट्राई करना चाहते हैं और सेम इंटरव्यूअर पैनलिस्ट आ गया, तो बहुत दिक्कत हो सकती है. या आप कभी कॉलेज में है, राइट, यू गो टू एनी अदर कॉलेज, योर वाइवा वाज एक्सटर्नल इज दैट सेम पर्सन, व्हाट विल यू डू? जस्ट इमेजिन. ठीक है, तो मत करिएगा ऐसा कुछ भी. प्लीज बी वेरी वेरी like respectful to the interview panelists. Don't disrespect them. That is something you need to make sure of. Next tip is that you need to make sure that you are courteous to the person. आप courtesyful हैं उससे बात करते हुए, and you respect the level they are talking from, and you let them complete their questions and you are not speaking in between. आप बीच में काट के बात को अपनी बात नहीं बोलेंगे. You let them complete, then you take a pause to see कि उनकी बात अगर खत्म हो गई, then you start, right? आपको हमेशा pause लेके बात करनी है. जब वो पूरा बोल ले, then when they stop and look at you, then you need to speak. You need to make sure that there is this much understanding that you are not being cut. ठीक है, आप किसी को काट नहीं रहे किसी की बात को, ठीक है, उनको पूरा बोलने दीजिएगा. गिव देम अ चांस टू स्पीक देयर एंटायर माइंड आउट, देन ओनली स्पीक. जब क्वेश्चन खत्म हो जाए, ऐसा नहीं एक्साइटमेंट में आप आंसर दे रहे हो. स्टे काम, लिसन टू देम, देन गिव एन आंसर. अगर आपको कुछ नेगेटिव भी लग रहा है, अगर वो आपको काट रहे हैं आपकी बात को, दैट इज फाइन. दे कैन डू इट. दे आर एन इंटरव्यू पैनलिस्ट. दे डोंट हैव द एंटायर डे टू लिसन टू एवरी रामायण. दे कैन कट इट शॉर्ट. सो डू मेक श्योर that you are also keeping your answers in a limit. आप ऐसे 5-5 मिनट की बातें ना करें. आप ऐसे उसको conversational रहने दे, थोड़ा conversation जैसा feel होने दे. Now coming to the next part, written ability test. There are a lot of tips that I have for written ability test, but I would love for all of you to join us for the next session on the written ability test. Also, we will talk about what are the topics you can look for in a written ability test, and what are the things that you need to make sure while you are going for it, right? So thank you for joining this live session. I hope you all had some amazing tips about what to do in interview, और आपको थोड़ा सा सच्चाई पता लगी होगी और कैसे रिसर्च करना है ये भी पता लगी होगी. And please use a mirror if you need a person to look at you while you are talking. So that's the best thing. Rehearsing in front of a mirror makes everything go a little better. So do that. That's a personal tip that you might use. Okay. So do take care of yourself. Have a nice day ahead.
and I hope everybody of you get a call from either Pune, Noida, Hyderabad, Nagpur, whichever is your dream college. So have a nice day ahead and best of luck. We will meet for a new interview, for a new written ability test session, and definitely we'll have a conversation about it. So thanks for joining this live session. Do take care of yourself and have a nice day ahead.